Good afternoon, children. Today we will revise chapter crop production and its management. All of you should know, children, plants are autotrophs and all the animals, including human beings, are heterotrophs. All the living beings, they need food for their growth and for their sustenance, means survival. But only plants can prepare food. They are autotrophs. And all human beings and other organisms, other animals, they depend on plants to get their food. Children, you should know that the agriculture is started about 10,000 years back. Now, what is agriculture? The practice of cultivating land for growing crops is called agriculture. It also includes plants which provide us fibers, medicines, flowers, and some ornamental plants. Okay, children? So, we need to grow the plants for other requirements also, like to get fibers, medicines, flowers, and for ornamental plants. So, agriculture is the practice of growing crops. Okay, the practice of cultivating land for growing crops is called agriculture. Prehistoric man were food gatherer. They did not know the art of growing crops. They used to wander from one place to another place in search of food, and they gathered the food from the forest, or they used to hunt the animals because they were food gatherer. And later they started to settle down near the sources of water, and they started to grow the crops. Okay, so agriculture started about 10,000 years back. Food gatherer were changed to food producer. Early man or prehistoric man were food gatherer, and then they became food producer. Okay, children? Now, what is crop production? Crop production means cultivation of crops, and that is one type of crops on a large scale. Cultivation of one type of crops on a large scale is called crop production. Okay, children? Cultivation means खेती करना. ठीक है? तो अभी आप देख रहे हैं बच्चों कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड फॉर देयर ग्रोथ एंड सस्टेनेंस. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबको ज़िंदा रहने के लिए, ग्रो करने के लिए फूड चाहिए. और केवल प्लांट्स ही फूड बना सकते हैं, वही ऑटोट्रॉप्स हैं. फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट्स में और वो फूड बनाते हैं. और जितने भी एनिमल्स हैं और ह्यूमन बीइंग्स हैं वो सब प्लांट पर डिपेंड करते हैं फूड के लिए. ठीक है बच्चों? प्रीहिस्टोरिक मैन जो थे वो फूड को गैदर करते थे, जमा करते थे फॉरेस्ट से, या हंटिंग करते थे, शिकार करते थे. उन लोगों को खेती करना नहीं आता था, वो फूड गैदरर थे. और बाद में वो जहाँ पर सोर्स ऑफ वाटर था, रिवर था, जैसे आपने पढ़ा है नील नदी के किनारे में लोग रहने लगे, खेती करने लगे. तो इस तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन और भी आपने पढ़ा है. तो जहाँ पर पानी था वहाँ पे रहने लगे और धीरे धीरे वो खेती करने लगे. ठीक है बच्चों? इसी को हम लोग कहते हैं एग्रीकल्चर. द प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग लैंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर. Agriculture includes production of some other plants also for other requirements, like to get fibers, flowers, medicines and for ornamental plants. ठीक है बच्चों? अब आप देख रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन किसको कहते हैं? कल्टीवेशन ऑफ वन टाइप ऑफ प्लांट्स ऑन अ लार्ज स्केल. एक ही तरह के प्लांट को जब हम लार्ज स्केल पे उगाते हैं तो इसी को हम कहते हैं क्रॉप प्रोडक्शन.
जैसे आप धान या गेहूं की खेती देखते हैं, बहुत सारे प्लांट जो है वो एक जगह पे होते हैं, ठीक है। तो कल्टीवेशन ऑफ वन टाइप ऑफ क्रॉप्स और प्लांट्स ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप प्रोडक्शन। अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ओके, तो इन ऑर्डर टू सप्लाई द फूड टू ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द कंट्री, फार्मर्स अंडरटेक सम सिस्टमैटिक एक्टिविटीज, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम to increase the production of crops. Okay, and it is called agricultural practices. Farmers, they undertake some systematic activities spread over a period of time for growing crops. Such activities are called agricultural practices. ठीक है। Now on the basis of season, the crops are of two types, Rabi crops and Kharif crops. Now, what are Kharif crops? Crops which are sown in the month of June and harvested in the month of October are called Kharif crops. They require more supply of water. They are dependent on western monsoon like paddy, maize, soybean, etc. Groundnut also. Now you will see what are Rabi crops. Rabi crops are such crops which do not require more quantity of water. They are not dependent on western monsoon. They are sown in the month of November and harvested in the month of April. Examples are mustard, pea, gram, linseed, etc. ठीक है बच्चों, तो सीजन के आधार पे क्रॉप्स दो तरह के होते हैं, रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स जो हैं उनको ज़्यादा पानी चाहिए, वो वेस्टर्न मानसून पर डिपेंड करते हैं और उनको बोया जाता है जून में और काटा जाता है अक्टूबर में। जैसे आप देखते हैं धान, मेज, मकई, ठीक है, सोयाबीन, ग्राउंडनट, ये सारे खरीफ क्रॉप्स हैं। खरीफ अरबिक में खरीफ का मीनिंग होता है ऑटम, क्योंकि इसको हार्वेस्टिंग किया जाता है ऑटम में। और रबी को अरबिक लैंग्वेज में इसका मीनिंग होता है स्प्रिंग, क्योंकि इसका हार्वेस्टिंग स्प्रिंग सीजन में होता है। ठीक है बच्चों, तो अभी आप देखें रबी क्रॉप्स जो है इनको बोया जाता है नवंबर में और इनकी कटाई होती है अप्रैल में, और इनको कम पानी चाहिए, ये वेस्टर्न मानसून पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। जैसे आप देखते हैं विंटर सीजन में जो बोया जाता है, जैसे ग्राम, चना, पी, मटर, लिनसीड, ये सारे जो हैं वो रबी क्रॉप्स हैं। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। व्हाट आर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस? मैंने बताया आपको, इन ऑर्डर टू मेंटेन अ स्टेडी सप्लाई ऑफ फूड, farmers undertake several systematic activities over a period of time to produce the crops. Such systematic activities are called agricultural practices. ठीक है, स्टेडी सप्लाई ऑफ फूड के लिए, सबको भोजन मिले, इसके लिए फार्मर्स जो है वो कुछ खास समय में सिस्टमैटिक मेथड में खेती करते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट एग्रीकल्चरल। तो क्रॉप प्रोडक्शन किसको कहते हैं बच्चों? ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स, सेम टाइप ऑफ प्लांट्स ऑन अ लार्ज स्केल। एक ही तरह के पौधे को हम लार्ज स्केल पे जो ग्रो करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ वन टाइप ऑफ क्रॉप्स ऑन अ लार्ज स्केल। कल्टीवेशन ऑफ वन टाइप ऑफ क्रॉप्स ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप प्रोडक्शन। एक ही तरह के क्रॉप को हम लार्ज स्केल पे जो उगाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्रॉप प्रोडक्शन। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो ये फार्मर्स जो है टू मेंटेन स्टेडी सप्लाई ऑफ फूड, दे अंडरटेक सिस्टमैटिक एक्टिविटीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। क्रॉप्स को उगाने के लिए वो सिस्टमैटिक मेथड यूज करते हैं, जो कि साइंटिफिक भी होता है,
जिसको हम लोग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहते हैं। फर्स्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इन्वॉल्व्स लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टिलिंग और प्लॉइंग। ठीक है बच्चों, ये पता होना चाहिए कि खेत में जब हम बोने जाते हैं कुछ, तो उससे पहले उसको हम तैयार करते हैं। जैसे आपका एग्ज़ाम आता है तो उसके पहले आपकी तैयारी चलती है, वैसे ही खेत में बीज बोने से पहले खेत को हम तैयार करते हैं। तो तैयार करने के लिए क्या करते हैं? लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल। मिट्टी को हम कोड़ते हैं, लूज करते हैं, और बड़े बड़े जो पीस होते हैं मिट्टी के, जिसको हम क्रम्स कहते हैं, उनको हम छोटे टुकड़े में क्रश कर देते हैं और फिर एक लेवल में कर देते हैं। इसी को हम कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इन्वॉल्व्स लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल। Now the big pieces of soil called crumbs are crushed and they are leveled with the help of leveler. So this process of loosening and turning of soil is called tilling or plowing, and plowing is done with the help of iron plow, or it is also done with the help of tractor. ठीक है बच्चों, तो प्लॉइंग जो है वो किया जाता है वुडन और आयरन प्लो से। अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ प्लॉइंग। इसका क्या फ़ायदा है प्लॉइंग का? मिट्टी को लूज करने से, लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड प्लॉइंग और टिलिंग। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ प्लॉइंग? प्लॉइंग का क्या फ़ायदा है? तो जब मिट्टी लूज हो जाता है तो एयर कैन सर्कुलेट इन द सॉइल एंड द रूट्स कैन रेस्पायर ईजिली। रूट्स में रेस्पिरेशन अच्छे से होता है, क्योंकि लूज एयर में, लूज सॉइल में, लूज मिट्टी में एयर का सर्कुलेशन अच्छे से होता है। तो सर्कुलेशन ऑफ एयर टेक्स प्रॉपरली एंड द रूट्स कैन रेस्पायर प्रॉपरली। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट थिंग, द रूट्स कैन पेनिट्रेट डीपर इन द सॉइल। अब रूट जो है वो मिट्टी में नीचे तक जा सकता है एंड कैन होल्ड द प्लांट फर्मली इन द सॉइल, और प्लांट को मिट्टी में होल्ड करके अच्छे से रखता है। ठीक है बच्चों, दो अभी आपने पढ़ा। फर्स्ट पढ़ा सर्कुलेशन ऑफ एयर टेक्स प्लेस प्रॉपरली एंड द रूट्स कैन रेस्पायर इजिली। नेक्स्ट थिंग, रूट्स कैन पेनिट्रेट डीपर इन द सॉइल एंड कैन होल्ड द प्लांट फर्मली इन द सॉइल। नेक्स्ट थिंग आप देखिएगा बच्चों कि वीड्स आर अपरूटेड ड्यूरिंग प्लॉइंग। द वीड्स मीन्स अप अनवांटेड प्लांट्स आर अपरूटेड एंड इट एड्स nutrients in the soil. Okay children, when the weeds are uprooted, they are decomposed by microbes, and during this process nutrients are also added to the soil, so soil becomes fertile. Next thing you will see children, it increases water holding capacity of the soil. ठीक है, मिट्टी में ज़्यादा पानी ठहर सकता है। So these are the advantages of plowing. Once again I am repeating, circulation of air takes place properly, okay, and roots can respire easily. Next thing, roots can penetrate deeper in the soil, which holds the plant firmly in the soil. Next advantage is weeds are uprooted, and during this process nutrients are added to the soil. Next thing you will see children, that plowing increases water holding capacity of the soil. So this is all about first agricultural practice, that is plowing. Next agricultural practice is, and plowing is done with the help of wooden or iron plow. Plowing कैसे होता है बच्चों? वुडन और आयरन प्लॉ से। ओके, द प्लॉ इज पुल्ड इधर बाय ऑक्सन और बाय ट्रैक्टर। प्लॉ को कौन खींचता है? ऑक्स खींचता है या ट्रैक्टर खींचता है। तो प्लॉइंग के बाद अब हम लोग नेक्स्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस इज सोइंग। सोइंग मीन्स प्लांटिंग ऑफ सीड्स इन द सॉइल। सीड जो हम लगाते हैं सॉइल में, फार्मर्स लगाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सोइंग। प्लांटिंग ऑफ सीड्स इन द सॉइल इज कॉल्ड सोइंग। सोइंग इज done by two methods. First method is called manual method, in which farmers sprinkle the seeds in the soil with the help of hand, manually, हाथ से छिड़कते हैं बीज को, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग। ओके चिल्ड्रन,
First method is broadcasting. Broadcasting means planting seeds in the soil manually. Seeds are scattered in the soil manually by hand. It is called broadcasting. In second method, a device is called seed drill that is used for planting seeds in the soil. Seed drill का यूज किया जाता है मिट्टी में बीज को बोने के लिए. Seed drill consists of a funnel with a pipe. सीड ड्रिल में एक फनेल होता है और उसमें एक पाइप लगा हुआ होता है एंड इट इज़ अटैच्ड विद द प्लो, और इसको प्लो में लगा दिया जाता है. तो क्या होता है कि जब प्लो चलता है तो वो जो फनेल में पाइप लगा हुआ होता है उससे सीड्स जो है वो फरों में चला जाता है. तो इस तरह से इस मेथड में सीड ड्रिल का यूज होता है. सीड ड्रिल इज अ डिवाइस in which a funnel is attached with a pipe, and this pipe is attached with the plough, and when the plough is pulled then the seeds are sown in the furrows which is made by the plough. तो इस तरह से नेक्स्ट मेथड है सोइंग. इन सम प्लांट्स सीड्स आर फर्स्टली सोन इन अ नर्सरी लाइक चिली, पैडी, brinjal, tomato. Seeds are firstly sown in a nursery, small plot. Nursery is a small plot, okay? And when the seedlings come out or saplings come out, then these seedlings or saplings are transferred to the main field. This process is called transplantation. तो कुछ क्रॉप्स में बच्चों सीड्स को पहले छोटे से प्लॉट में लगाया जाता है जिसको नर्सरी कहते हैं, और जब उससे छोटा सा प्लांट निकलता है जिसको हम लोग सीडलिंग या सैपलिंग कहते हैं, तो उस सीडलिंग को फिर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है मैन फील्ड में. ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन. जैसे ये होता है टोमेटो में, चिली में, ब्रिंजल में, पैडी में, इन सारे में सीड्स को पहले छोटे से प्लॉट में लगाया जाता है नर्सरी में, और फिर जब सीडलिंग्स निकलते हैं तो उनको मैन फील्ड में ट्रांसफ़र किया जाता है. इसी मेथड को ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं. तो बच्चों इन सम क्रॉप्स सीड्स आर फर्स्टली सोन इन अ स्मॉल प्लॉट कॉल्ड नर्सरी, and when the seedlings come out then these seedlings are transferred to the main field. This process is called transplantation, and it is applied in some crops like tomato, chili, brinjal, paddy, etc. Now what is the advantage of transplantation? Due to transplantation, all the plants which are grown, they get sufficient amount of sunlight, water and nutrients. Okay, so sunlight, water and nutrients are got by the plants uniformly. Okay, and next thing is that farmers can select only healthy plants. So this is the advantage of ploughing. Very important children. It ensures, what is advantage of transplantation? Transplantation ensures uniform availability of water, sunlight, nutrients, etc. Okay, all the crops, they get uniform amount of nutrients, water and sunlight. Next thing, that farmers select only healthy plants. So children, this is about transplantation. ठीक है बच्चों, तो ट्रांसप्लांटेशन कुछ क्रॉप्स में यूज होता है, और ट्रांसप्लांटेशन का क्या एडवांटेज है, फ़ायदा है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये हमेशा पूछा जाता है एग्जामिनेशन में. ठीक है, तो क्या इसका एडवांटेज है, आप देख रहे हैं कि इट इंश्योर्स यूनिफॉर्म अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, एयर, sunlight, nutrients etc. to the plants. All the plants get uniform minerals, water, sunlight etc. And it ensures only healthy plants, selection of healthy plants. Farmers select only healthy plants. So this is about the transplantation.
You have read two agricultural practices. First one, preparation of soil, and next one you have read sowing. Sowing means planting of seeds in the soil. मिट्टी में जो हम लोग सीड लगाते हैं इसी को सोइंग कहते हैं. सोइंग दो तरह से होता है. फर्स्ट मेथड बाय हैंड, इट इज़ मैनुअल मेथड. सीड्स आर स्कैटर्ड इन द soil. This is called manual method. It is done by hand. And next method by using seed drill. Seed drill consists of a funnel with a pipe. Seeds are kept in the funnel, and this funnel with a pipe device called seed drill is attached at the back of the plow. And when the plow moves, then these seeds are sown in the furrows. So this is all about sowing. Okay children, you will revise.